I haven't spent a single penny on any course like online or offline course. I didn't took any course. So all I did was practice, practice and practice. तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था and I was doing all these things. So मतलब जब मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी तो ऐसा होता था कि I used to use my phone and then उसमें कीबोर्ड अटैच किया using दो जो ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड होता है and then I used to practice all those coding. So अब ऐसा लगता है कि यार क्या टाइम था वो. Hello guys, I'm Vyome Singh from Saraj Education and today we have Rishika Gupta who cracked two PPO, LinkedIn and Adobe and nailed full-time interview at Atlassian. Fine, and finally she joined LinkedIn. So that's why this is important. She will tell you how to crack internship, how to crack full-time interview, as well as how can we convert an internship into PPO because she has experience in two internship, right? And she converted both the internship into PPO. So welcome, Jessica. Welcome to my channel. Thank you, Ramesh, for having me. So Rishika, could you please introduce yourself? Yeah. So hello everyone. I'm Rishika Gupta, currently working at LinkedIn as software developer. And my previous experience includes working as a software developer at LinkedIn for 2 months and as a product intern with Adobe for 6 months. And I have also worked with many startups in different positions. Like I worked with an academy in the starting years when it was started as an educator. Then I worked as a management lead with data stats. I worked as an associate developer with Census Lab Incorporation, and all of these work I have done in my engineering. So yeah, that is a brief introduction about me. So just let me know how you get too much time because everyone has 24-hour students saying that they don't have time to prepare for the placement because of exams, because of projects and all. And you are doing internship, you are clearing all your exams, and you are participating in so many things. So how you do that? Yeah, so I always say that I have 48 hours in a day, like in a funny way, because everyone asks me the same question that how can you do so much? Because apart from the work experience, I have participated in many hackathons and competitions as well. So yeah, that is something I also love about like have doing engineering, because I feel that in engineering, the more focus should be on the self learning and development part, and less should be on the exams. Like handling exams and doing all those practicals, because they do not cater the practical needs of the industry. As we all know, the education system of India right now, they just teach you the basics, CS fundamental, and even the more focus is on cracking the like getting good scores in exam rather than actually understanding the concepts. So what I did was I used to prepare for the exam just one night before the exam, or maybe just few hours before the exams. What we do was we had a group of friends. We were four friends, and we usually do that. Okay, one chapter will be teach by one friend, and that's how we cover the whole syllabus. Like I will teach one chapter, the other friend will teach the other chapter, and that's how we cover the whole syllabus just in few hours before the exam. So that is something we mentally prepare ourselves that okay, exam ka pressure nahi lena, and we should focus on our personal development. And for that we did lot of practice. Like in my personal experience, I haven't spent a single penny on any course like online or offline course. I didn't took any course. So all I did was practice, practice and practice. So yeah, that is something I would recommend to all of you to focus on, and that's how you can manage. Like एग्जाम्स तो देने ही पड़ेंगे, बट यू शुड फोकस मोर ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट. Uh, Students are facing problem to get shortlisted because their resume हम्म. do not shortlisted, right? So that is हम्म. the biggest challenge. And you got the internship in second year, third year, even in seventh semester. So how did it happen? Means what tips you want to give? What should they do Right. so that their resume can be shortlisted? Hmm. So I would say that starting from your first year, you should start learning coding first, and then you can shift from development side. Like you can learn Android or web development or anything. And
you have to keep participating in different events and hackathons or competition. For example, if you are doing like coding, if you are practicing coding only, DSA, data structures and algorithm, then you can participate in competitions like ACM ICPC. It is a very big competition for coding coders. And then you can participate in like tech geek competitions, and then geek for geeks and code chef, code forces. So you have to participate in those competitions, so that you can actually mention them in your resume that okay, I am a 5-star coder, and I have participated in this much contest, and this was my ranking and all these things. So you can showcase your experience in your resume, because otherwise मोस्टली आई हैव सीन दैट लोगों के पास कुछ मेंशन करने के लिए नहीं होता रेज्यूमे में. That is why they don't get shortlisted. So you have to do everything, like practice everything and then showcase it properly in your resume. So for that you have to participate in different competitions. You can participate in Facebook Hacker Cup, Google Code Jam. There's so many big level competitions that you can mention in your resume, and it will impact a lot. And in case of development, you can participate in hackathons. Like there are so many hackathons, and you can start from very basic level, like participating in college level hackathons, and then national level, and then you can move forward to the international hackathons as well. And I can tell you, if I can run it, you can also run them. So yeah, that is something I want to share ki, matlab, don't just let it go. Practice and participate. These are the two things you have to do starting from your first year. And if you are doing it, then mention it properly in your resume. And if you are mentioning it properly in your resume, then you will get shortlisted, because the expectation of the company is not very high. Like they are not expecting that a first year student or a second year student is very good in coding and very good in development. They just want someone who is ready to learn, who is flexible to learn new technologies, who is flexible to work in new projects. And that, if you are properly showcasing in your resume, then your resume will get shortlisted. I can ensure Okay, this. right now we have given, you have provided all the gyan they need, but you have faced all the challenges by yourself as well, because Right. फर्स्ट Yeah. ईयर में everyone is beginner, right? किसी को थोड़ी मोटी कोडिंग आती है, किसी को कुछ भी नहीं आता है. So how did you start your journey in the very first year? Because और या तो आपका माइंड पहले से क्लियर था. Some people's like कि we will see, we will explore the thing. So what was your mind condition that time? Was your Hmm. mentally prepared that I want to do that, or you explored, and what path you chose? Hmm. So, first of all, let me make it very clear. I had no prior experience in coding. Like, I was a PCMB student, so I had bio in my 12th. And so, like C++ का ऐसा था, I don't even know the syntax and semantics of C++. इतना basic था. And as I mentioned before, I didn't spend a single penny on any course, online or offline. मतलब मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे, they used to join any coaching institution for DSA, but I belong to a very humble family, so that is why I couldn't afford it. And then I thought, okay, let's explore everything we have on internet right now. So if you are ready to explore, and if you really want to learn, you can learn it from anywhere. You have all the courses, paid and free courses available on the internet. You have all the DSA questions that you can think of available on the internet with solutions and pure proper tutorials. So I won't say कि लाइक कोर्स लेना इज अ नेसेसिटी, बिकॉज मैंने नहीं लिया तो जरूरी नहीं है कि लेना ही पड़ेगा. एंड इन द फर्स्ट ईयर, एज आई सेड, कि मेरे पास कुछ प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, एंड इवन नो गाइडेंस फ्रॉम एनी सीनियर, और फैमिली में ऐसा कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था ज्यादा. सो दैट इज वाई कोई गाइडेंस भी नहीं था. बट आई जस्ट न्यू कि हाँ ठीक है, एक्सप्लोर तो करना ही है. सो वट आई डिड वॉज, आई हर्ड अ नेम कोड शेफ, कि ठीक है ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस पे कोडिंग सीखते हैं या कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं. तो मैंने कहा चलो ठीक है, साइन अप करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, कि ये तो सबसे इजी होगा, इससे पता चल जाएगा कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता. सो आई जस्ट लर्न द बेसिक सिंटेक्स, की इंट ए बी प्रिंट आउट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखी. एंड देन आई स्टार्टेड कि चलो ठीक है,
प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे, जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ेगा देन आई विल लर्न दी कॉन्सेप्ट्स। सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। इसलिए मैंने कुछ ऐसा वो नहीं लिया कि पहले कोई कोर्स लेते हैं, फर्स्ट आई विल लर्न एंड देन आई विल कोड। आई थॉट कि ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ ही सीखेंगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या कॉन्सेप्ट्स है और कैसे फॉलो करना है पाथ, तो मुझे पता ही नहीं था कि हाँ भाई ये चीजें पहले सीखनी पड़ेंगी। सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, आई डायरेक्टली जंप टू कोडशेफ। एंड दैट वाज अ, अब मुझे रियलाइज हो रहा है दैट वाज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, नॉट प्योरली अ डीएसए प्लेटफॉर्म where you practice the DSA part. So now when I recommend my junior, I used to recommend कि पहले Geek for Geeks करो, lead code करो, and then jump to CodeChef or Codeforces. So in my case, I explored all these things by myself and then I choose okay ठीक है यहाँ पे जाना है, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करके. So yeah, that was my path. जो मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट थिंग, अगर आपको कोडिंग, अगर आपको थोड़ी बहुत सिंटैक्स पता है, तो फर्स्ट डू हैकर रैंक, बिकॉज हैकर रैंक की ना Hmm. कोडिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। और Right, एक right. Hmm. एक जगह आपको मिल जाते हैं सारे Hmm. 40-45 प्रॉब्लम्स एंड यू सॉल्व देम एंड यू बिकम Hmm. द 5 स्टार कोडर, यू विल फील लाइक Right. कि हाँ कुछ अचीव किया है। गीक फॉर Hmm. गीक्स इज अ गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन इट इज लाइक अ ओशियन, मतलब वो हाँ, कभी एंड इसमें नहीं काफी होता। क्वेश्चंस. आप मतलब Right. यू विल गेट स्टक, यू विल सी अच्छा Hmm. ये वाली प्रॉब्लम की है, अरे अभी तो 100 बची है। तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट देयर। So, from my personal experience, I have practiced on Geek for Geeks and HackerRank more, and little bit of Lead Code, and of course for CP I practiced on Codeforces and CodeChef. So what I did was in the starting, I as I mentioned कि मैंने CodeChef से start किया था, so and उसी के ऊपर मेरा पेस बन गया था, like I was good at it after some time. So that is why DSA थोड़ा easy हो गया मेरे लिए. So then I shifted to okay hacker rank पे shift करते हैं, इसका UI थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा यूजर फ्रेंडली है ये. सो लेट्स शिफ्ट फॉर बेसिक, फॉर प्रैक्टिसिंग बेसिक डीएसए, हैकर रैंक पे शिफ्ट करते हैं. तो उस पे ऐसा है कि यू हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक काफी स्ट्रक्चर्ड है वो. सो यू डोंट हैव टू रोम हेयर एंड देयर कि अच्छा ये अब ये क्वेश्चन करना है, अब इसके बाद कौन सा करें. यू हैव रेटिंग्स, यू हैव स्टार्स, एंड देन यू कैन यू नो एक स्ट्रक्चर वे में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. सो आई प्रैक्टिस्ड basic DSA, not for placement preparation, just for my practice from HackerRank. And then for practice, like standard DSA question जो companies में पूछे जाते हैं, I did practice on Geek for Geeks, क्योंकि उसमें ऐसा है company tags के साथ सारे questions आ जाते हैं. So what I used to do is जैसे ही कोई कंपनी आती थी, आई यूज टू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी टैग एंड उसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन्हें जल्दी से खत्म कर लो. तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी एंड आई टुक लाइक आई वांटेड टू हैव सम structured course also of all these standard data structures and algorithm questions. So Geek for Geeks पे काफी free courses available है. Like I did a must interview preparation course from Geek for Geeks that was free, and उस course में ऐसा होता है बस क्वेश्चंस होंगे आपके पास इन अ स्ट्रक्चर्ड वे कि एरेज के ये 100 क्वेश्चंस हैं, स्ट्रिंग्स के ये 50 क्वेश्चंस हैं, ऐसे करके. सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी कि ठीक है ये Must do कंपनी से coding क्वेश्चंस questions, है. I think. You are या talking about या must do coding question, राइट 200 राइट questions are there around. राइट राइट. सो वो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लेते एंड लाइक इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि उसमें सारे स्टैंडर्ड और जो एल्गोरिथम्स होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं कंपनीज में, वो सारे कवर्ड थे. तो दैट वाज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय प्लेसमेंट. या अच्छा, तो फर्स्ट 2 ईयर में आपने मतलब यू प्रिपेयर, मतलब आपने एक ग्रुप बना लिया उसके साथ प्रिपेयर किया, या इट वाज अ सोल लोन जर्नी कि हाँ भी एक रूम में बंद किया, अपने कोडिंग कर रहे हैं, अपने को किसी से मतलब नहीं नहीं है, नहीं ठीक है। नहीं, और ऐसा तो क्योंकि मत होता क्या करना. है ना कि होता क्या है कि कोडिंग में एक प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप फंस जाते हो ना, वो भी स्टार्टिंग में फंस जाते हो, तो यू फील हम्म. लाइक यार मेरे से नहीं होगा, बाकी पता नहीं सब कैसे करना है। तो दैट इज द राइट. प्रॉब्लम इन द कोडिंग, क्योंकि अगर आप एक हम्म. कमरे में बंद हो और आप फंस गए हो उस कोडिंग क्वेश्चन के अंदर एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू अदर्स राइट बिकॉज एवरीवन इज फेसिंग द सेम चैलेंजेस, राइट। सो राइट. मतलब आपने कैसे किया वो? या सो मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगी अकेले करना कोडिंग. अगर अगर फ्रेंड्स हैं तो टेक एडवांटेज ऑफ इट, बिकॉज ग्रुप में कोडिंग करना फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस ये होंगे कि आपको प्रेशर फील नहीं होगा.
you can communicate with each other, and it will be a fun experience for you. ऐसा होगा कि तुम हंसते हंसते जो है बातें करते करते क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. सो वो एक जो चीज होती है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि उन कॉन्वर्जेशन से यू विल लर्न अ लॉट. सो मेरे केस में ऐसा था कि आई वॉज द ओनली वन जिसने कोई कोर्स या फिर कोई क्लासेस अटेंड नहीं करी थी सी प्लस प्लस की. सो आई यूज टू डू इज, हम क्या करते थे, हम क्लास के सबसे लास्ट बेंच पे बैठ जाते थे. एंड मेरी जो फ्रेंड थी उसे भी कोई एक सा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था इन इन केस ऑफ लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम प्रैक्टिस करने का. शी जस्ट नो द बेसिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स सी प्लस प्लस, क्योंकि 11th 12th में सी प्लस प्लस था उनके पास. सो इन द फर्स्ट ईयर हर कोई लॉस्ट था, किसी को कुछ नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में क्या करना है. इवन तो वी ऑल आर फ्रॉम सीएस लाइक कंप्यूटर साइंस ब्रांच, बट किसी को कोई आइडिया नहीं था कि हाँ प्लेसमेंट्स के लिए कैसे बैठना है और क्या प्रिपेयर करना है, क्या करना है. तो हमने जस्ट सोचा कि चलो ठीक है एक्सप्लोर करते हैं एटलीस्ट इन फर्स्ट ईयर, एंड देन सेकेंड ईयर से थोड़ा प्रॉपर अगर हमें फील हुआ कि हमें स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चाहिए तो हम क्लासेस ऑप्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू डेवलपमेंट और ऑल दीज थिंग्स. सो फर्स्ट ईयर में हमने बस एक्सप्लोर किया है सारी चीजें, सारे प्लेटफॉर्म. तो उसमें कुछ सही निकला कुछ गलत निकला, तो सारी चीजें एक्सप्लोर करके ही पता चली. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज क्लास में हम लास्ट बेंच पे बैठ जाते थे. कोड शेफ फोन निकाला, कोड शेफ ओपन किया, उसका क्वेश्चन निकाला, एंड देन पेपर पे लिखा कि अच्छा दिस कैन बी द सूडो कोड. तूने कैसे किया, मैंने कैसे किया, अरे नहीं तेरे में ये दिक्कत है मेरे में ये सही है. तो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स. और इसी से फिर हमारे वो आते थे कि अच्छा ये टेस्ट केसेस पास होंगे तेरे केस में, मेरे में ये फेल हो जाएंगे, एंड दीज आर द कॉर्नर केसेस. तो ऑल दीज डिस्कशंस वी डिड इन आवर क्लासेस. तो वो एक काफी आई वुड से फन जर्नी रही मेरे लिए, क्योंकि मतलब उसमें मजा भी आया एंड प्रेशर भी फील नहीं हुआ, एंड वी लर्न अ लॉट. एंड इट वाज अ हेल्थी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आई वुड से, क्योंकि ऐसा था कि हम सारे एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. तो वो एक काफी अच्छी चीज होती है. आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपने जस्ट ज्वाइन किया है कॉलेज, एंड आई वुड से कि हाँ ऑफलाइन ही हो जाए कॉलेजेस, क्योंकि ऑनलाइन में काफी दिक्कत हो जाती है इन सारी चीजों को लेकर. तो अगर ऑफलाइन कॉलेजेस होते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि एक एक ग्रुप बना लो. मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं, आपकी मर्जी है. इवन अगर आपके पास एक पार्टनर है, कोडिंग पार्टनर, दैट विल बी ऑल्सो फाइन, सो दैट यू हैव समवन टू डिस्कस विद कि ये क्वेश्चन कैसे करना है. Okay, now in first year, in second year, you prepare with the code chef, lead code, geek for geeks, hacker rank. मतलब आपने एक basic coding कर ली and you got a Right. confidence. Fine. So second year के बाद आपने startups में वो internship start कर दी थी. So how you got that Right. and how was your Hmm. experience? Means उनको आपने approach कैसे किया? क्योंकि what Right. happens ना कि students do not have guts to approach to any company. They are like कि थर्ड ईयर Right. में कंपनी आएगी या फाइनल ईयर में आएगी तभी हम करेंगे, अभी तो कोई हमें पूछ Right. नहीं रहा. तो ऐसा नहीं होता. मतलब आई वुड से कि फर्स्ट ईयर में अपना बेसिक डीएसए वाला जो पार्ट है वो कवर कर लो, एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेकंड ईयर यू कैन शिफ्ट फ्रॉम डेवलपमेंट साइड. मतलब उसे भी पैरेलल में थोड़ा थोड़ा करते रहो. सो फॉर डेवलपमेंट आई टुक अ यूडेमी कोर्स, फ्री कोर्स था वो, यूडेमी वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प करके ऐसा कोई कोर्स था. सो आई टुक दैट कोर्स, एंड उसमें वेब डेवलपमेंट में के सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए थे, जिसकी वजह से आई मेड 2-3 वेबसाइट्स and participated in hackathons. Like in 3-4 months, I focused on development. Like parallel चल रहा था, DS से भी practice करते रहो, like day का 2-3 questions, and development side भी focus करते रहो. So I have something to put on my resume कि coding side में I participated in this competitions, and in development side मैंने अभी basic करा है, and ये frameworks use करे हैं, इसमें experience है, इन सारे hackathon में participate करा है. So एंड फॉर अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट आई कैन सीरियसली टेल यू कि कंपनी इतना एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि यू आर जस्ट अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट. मतलब उन्हें भी पता है कि हाँ इतना नहीं किया होगा तुमने. सो लाइक मैं अगर ये शेयर करूँ कि मैंने अप्रोच कैसे किया. सो I worked as an educator with an academy in the first year only. So first year में educator में मतलब कोडिंग तो नहीं आती थी, तो एजुकेट क्या क्या करेंगे हम. बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. सो आई सेड ओके चलो ठीक है यही स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी. तो मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं. तो वहां से फिर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया. तब
अनअकैडमी स्टार्ट हुआ था तो दे यूज टू हायर लॉट ऑफ एजुकेटर्स, और इतना कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं था। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसा कि मैंने बस अनअकैडमी पर ही अप्लाई किया था एंड वहां से ही हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया। आई अप्लाइड a lot of like same positions, एजुकेटर वाली पोजीशन जो होती है। एंड मैंने इंटर्नशाला यूज किया था प्लेटफॉर्म अप्लाई करने के लिए, वहां पे सारी डिटेल्स फिल करी, व्हाई वुड वी हायर यू, और ये सारे क्वेश्चंस फिल करे। एंड देन जहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, आई जस्ट टुक दैट अपॉर्चुनिटी कि ठीक है करेंगे। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज मैनेजिंग 4 थिंग्स टुगेदर, लाइक काफी बड़ी बड़ी चीजें थी, इंटर्नशिप्स, 3 इंटर्नशिप्स थी एंड एक मैनेजमेंट पोजीशन थी। तो ऑल दीज थिंग्स आई वाज हैंडलिंग, एंड मेरा ऐसा था कि मुझे बस एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे आगे जाके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाना है, यूआई डेवलपमेंट में जाना है, किस में जाना है। तो आई हैव टू एक्सप्लोर एंड देन पुट अ क्रॉस कि मुझे ये लाइन नहीं चाहिए और ये वाली लाइन चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अब। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है, ये 4 4 साल मुझे मिले हैं तो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर, कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, कहीं से नेगेटिव आएगा, चलता है वो, कोई बात नहीं। तो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड। आई अप्लाइड ऑन इंटर्नशाला, गीग इंडिया, और ऑल दीज जो ये इंटर्नशिप और स्मॉल गीग्स की वेबसाइट्स हैं, इन सब पे मैंने अप्लाई किया था। एंड जहाँ से फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो वहाँ पे फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। So my first was as an educator with an academy, and then second was as a associate developer with Census Lab Incorporation. So it was also a startup. So उनकी भी इतनी हाई रिक्वायरमेंट नहीं थी। उनका ऐसा था कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा प्रायर एक्सपीरियंस है इन डेवलपमेंट एंड इफ यू वांट टू डेवलप समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, देन ठीक है, 2 3 इंटरव्यू होंगे एंड देन वी विल हायर यू। तो वो भी काफी अच्छा रहा था। एंड दिस वाज इन माय सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड देन आई वर्क विद मेनी स्टार्टअप्स लाइक फाउंडेशंस आल्सो। वन स्टेप फॉरवर्ड फाउंडेशन आई वर्क विद फॉर 6 months एज अ फेलो, जहाँ पे हमें कोडिंग सिखानी होती थी बच्चों को। सो दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि हमें हमारा ऐसा होता था कि कम्युनिटीज में जाके हमें सबको टीच करना है। सो इट रियली इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सप्लेन कैसे करना है, क्योंकि व्हेन यू आर टीचिंग अ किड यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी सॉफ्ट विद योर यू नो सॉफ्ट विद योर कॉन्सेप्ट्स, कि मतलब बच्चों को समझ आ जाए वो कोडिंग वाली चीजें। सो फॉर 6 months आई डिड देयर, एंड लाइक या यू कैन से दैट आई हैड 48 hours in a day। बस Okay, कॉलेज साइड बाय okay. साइड चल रहा था। Okay, once you are in third year, there are the companies who हम्म। are coming to your college for internship because you are from IGTTW, right? या। So there are the companies are coming and you are हम्म। preparing for this day from long, from your first day of या। the college, we can say, right? So या। what was in your mind and how you change your preparation strategy? Because till now हम्म। you were having fun. Means अब तक हम्म। आप क्या कर रहे थे? आप राइट। पढ़ रहे थे दोस्तों के साथ, ठीक है, मतलब रैंडमली आप हम्म। कभी वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, कभी आप कोई कोड उठा रहे हो, हम्म। लेकिन अब क्या है, अब एक पर्टिकुलरली फोकस करना है कि हमें इतना बेसिक आना चाहिए, बिकॉज आप सारी कंपनी को तो नहीं कर सकते टारगेट राइट। एक बार राइट। में। तो उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे चेंज हुई और कितने हम्म। टाइम पहले, जैसे कि हम्म। सपोज 5th सेमेस्टर में अगर कंपनी आ रही है या आपके कॉलेज में 6 से आ रही है, तो उसके कितने टाइम पहले यू मीन्स डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर कंपनी हम्म। इंटरव्यू? ओके। सो लाइक डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस तो आई वाज डूइंग फ्रॉम लाइक फर्स्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग। सो उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड ईयर होने के बाद व्हेन आई वाज स्टार्टिंग कि ठीक है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है, तो एज आई सेड कि हाँ एक एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए था, कि दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि वैसे तो नहीं पता हमें कि क्या क्वेश्चंस आते हैं। सो देन आई चेंज फ्रॉम हैकर रैंक टू गीक फॉर गीक्स, और तब मैंने वो कोर्स किया था, मस्ट टू इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स वाला जो था। तो उसमें आई स्टार्टेड ओनली 2 months बैक, जब प्लेसमेंट हमारा स्टार्ट होने वाला था, प्लेसमेंट सीजन। एंड आई स्टार्टेड अ टारगेट, ठीक है कि दिन के 10 क्वेश्चन करने हैं या दिन के 20 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे। एंड उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप नहीं था एक्चुअली, इट इज वेरी फनी कि मतलब मेरे पास लैपटॉप नहीं था एंड आई वाज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सो मतलब जब मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी तो ऐसा होता था कि आई यूज टू यूज माई फोन एंड देन उसमें कीबोर्ड अटैच किया यूजिंग दो जो ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड होता है, एंड देन आई यूज टू प्रैक्टिस ऑल दोस कोडिंग। सो अब ऐसा लगता है कि यार क्या टाइम था वो। तो या आई आई टुक दैट टारगेट कि दिन के 10 क्वेश्चन करने हैं, मतलब या आप फिर अगर मोबाइल कभी पे ज्यादा मन है। 20 कोड्स इन अ डे कर रहे थे, वही मस्ट ओ डू कोडिंग क्वेश्चंस? या
वो काफी अच्छा टाइम था, मतलब काफी ऐसा होता था ना कि नींद नहीं आती थी यार, 10 क्वेश्चन पूरे नहीं करे तो करने पड़ेंगे। तो काफी ओके। अच्छा टाइम था। एंड या इट वाज रियली फन। सो 2 मंथ्स में हो गया था वो कोर्स। एंड उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया था दैट आई कैन सेट फॉर प्लेसमेंट्स। मेरे स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड आई वुड से कि आई जस्ट अप्लाई फॉर 2-3 कंपनीज। लिंक्डइन वाज द फोर्थ कंपनी जो हमारे कैंपस में आई थी फॉर लाइक थर्ड ईयर इंटर्नशिप। एंड उससे पहले जितनी भी कंपनीज आई थी सबका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया था। सो आई अप्लाइड फॉर 2-3 कंपनीज एंड या सब में बस लास्ट राउंड या फिर सेकेंड लास्ट राउंड में जाकर रिजेक्शन आया था। सो लिंक्डइन वाज द फोर्थ कंपनी एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो ठीक है, पहले रिजेक्शन की बात करते हैं। मतलब ओके। रिजेक्शन हो गया तो मतलब वो फीलिंग क्या थी? एंड क्योंकि होता है ना कि यार मैं तो मतलब राइट। फर्स्ट डे से प्रिपेयर कर रही हूँ और जिसका हाँ। हुआ है मुझे उससे ज्यादा आता है, क्योंकि ये फीलिंग या तो हमें हुआ होती था ही है। हुआ था। तो हुआ था मतलब सो। हाउ वाज योर फीलिंग एंड हाउ यू ओवरकम दैट? बिकॉज टाइम तो मिलता नहीं है। आपने एक ओ कंपनी की, दूसरी एंड आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, राइट। और दिमाग हो रहा है खराब। होता है प्लेसमेंट सीजन में ये ना हो तो फिर कैसा प्लेसमेंट सीजन। सो द वैसे फर्स्ट कंपनी इन कॉलेज वाज गूगल। एंड गूगल की शॉर्टलिस्टिंग टेस्ट बेस पे नहीं थी, रेज्यूमे बेस्ड थी। एंड माय रेज्यूमे गॉट रिजेक्टेड कि ये लड़की नहीं होगी सिलेक्ट। और मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ कि यार और क्या चाहिए, मतलब मेरे पास सेकेंड ईयर में इतना एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, कोडिंग एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा और मैं क्या डालूं, मैं इससे ज्यादा नहीं डाल सकती थी। तो उस टाइम हुआ मेरा दिमाग खराब कि यार ऐसे कैसे हो गया। लेकिन फिर ऐसा था चलो ठीक है कोई बात नहीं, गूगल ना सही तो दूसरी बड़ी कंपनीज भी है। मतलब मेरा ऐसा कोई ड्रीम कंपनी नहीं थी कि यार यही कंपनी चाहिए, ये नहीं मिली तो मुझे और किसी में नहीं जाना। ऐसा कुछ नहीं था। इवन नाउ आई डोंट हैव अ ड्रीम कंपनी, आई जस्ट हैव अ लाइक मोर फोकस ऑन द डेवलपमेंट पार्ट कि अच्छा टेक स्टैक हो, अच्छी डेवलपमेंट करने को मिले, अच्छा काम हो, वर्क कल्चर हो, टीम अच्छी हो, एंड दैट इज फाइन फॉर मी। तो या फर्स्ट रिजेक्शन वाज फ्रॉम गूगल एंड सेकंड वन फर्स्ट वाज फ्रॉम सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स कैसा हुआ, टेस्ट क्लियर हो गया, राउंड सारे अच्छे गए, आई वाज इन द लास्ट राउंड, एचआर के साथ एचआर राउंड था वो। एंड काफी अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं घर जा रही थी यार इसमें तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे लिंक्डइन का इंटरव्यू था और मेरा ऐसा था कि यार सेल्स फोर्स में हो जाए तो खत्म हो टेंशन। तो आई वाज जस्ट गोइंग होम एंड रिजल्ट आया कि नहीं हुआ सिलेक्शन। तो मेरा ऐसा था यार नहीं दोबारा नहीं। रिजेक्शन है इसमें तो बिल्कुल नहीं है, अच्छा राउंड से कौन रिजेक्ट होता है। इतना भी क्या गलत बोल दिया मैंने, तो ये सारी फीलिंग्स थी। बट देन लिंक्डइन में काफी अच्छा मेरा इवन लिंक्डइन वाज वेरी फनी। मतलब मैं अपनी इंटरव्यू में लेट थी क्योंकि उस दिन काफी बारिश हो रही थी एंड आई वाज लेट। सो इंटरव्यू को 15 to 20 मिनट्स वेट करना पड़ा था। बट ही वॉज सो नाइस कि ठीक है कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, ऐसे हो जाते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं एंड हो जाती है ऐसी सिचुएशन, तो कोई बात नहीं, काम डाउन, टेक अ रेस्ट फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट। सो काफी अच्छा इंटरव्यू रहा, डिस्कशन अच्छी हुई एंड देन मैं बस घर आके मैंने कहा यार मैं बहुत थक गई हूँ, 2 दिन से रिजेक्शन मिल रहा है और ये मैं बस इंटरव्यू दे के आ गई हूँ, अब तो मुझे सोना है। और मैं बस सो रही थी, फिर मेरे पास कॉल आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द एचआर राउंड। एंड मैं सोते सोते ही एचआर राउंड दे रही हूँ कि हाँ हाँ दीज आर माई हॉबीज और ये सारी चीजें मैंने करी है, आई विल बी हैप्पी टू ज्वाइन यू, ऐसे ऐसे करके। एंड देन रात को रिजल्ट आया कि यू आर सिलेक्टेड। दैट वाज द डे व्हेन का चलो हो गई प्लेसमेंट। ध्यान से देखिए इस लड़की को जिसने लिंक्डइन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। इंटरव्यू में लेट नहीं पहुंची, ऐसी। लास्ट राउंड सोते हुए दे रही है, एंड फाइनली लिंक्डइन ही ज्वाइन किया। आई वुड से कि हाँ थोड़ा लक फैक्टर होता है इन सारी चीजों में। सो आई वुड से कि हाँ दैट डे वाज लकी फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं सिलेक्ट हो गई लिंक्डइन में। लुक, लक फैक्टर तब काम आता है व्हेन यू आर ऑलरेडी वेरी वेल प्रिपेयर, राइट? या अगर दैट इज ट्रू। प्रिपेयर नहीं हो तो फिर लक फैक्टर कोई काम नहीं कर पाएगा। That is true. Yeah, that is my funda. I would say 80% is your hard work and 20% is your luck. मतलब हम्म। 50-50 तो नहीं होता। मीन्स व्हाट आई थिंक कि अगर लक, आप कह रहे हो कि यू आर अनलकी, कि यू आर नॉट गेट प्ले, सो डोंट वरी अबाउट हम्म। दैट, बिकॉज देयर आर 365 days, राइट? एंड कम से कम आप 50 कंपनी के इंटरव्यू दे सकते हो, और 50 में से आराम आपको से। सिर्फ एक चाहिए, आपको सिर्फ एक चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो पहली हो रही है, लास्ट हो रही है। इट डजेंट मैटर कि आपका फर्स्ट डे आपका इंटरव्यू नहीं कर रहा है, लास्ट नहीं कर रहा है, बस आपका एक, जब कॉलेज पास हो जाओ तब आपके हाथ पे एक
अच्छी जॉब होनी चाहिए, यू कैन स्विच एनी टाइम। मैंने बहुत लोगों को देखा जो Right, टीसीएस right, से अमेजन गए हैं, गूगल गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट गए हैं, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, देन दे वर लाइक कि यार मुझे बाकी कंपनी में तो बैठने ही नहीं दे right. ऐसा भी होता है. I have seen this too. Yeah. रहे। सो यू हैव कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप इन लिंक्डइन। सो मुझे आप ये बताइए कि अडोबे में भी आपने इंटर्नशिप की 6 मंथ, सो अडोबे इंटर्नशिप इंटरव्यू ऑफ कैंपस था? No, that was also on campus. Off-campus interview I did for Google, but उससे पहले मेरा LinkedIn का PPO आ गया था, तो I said okay no to Google. तो yeah, off campus I did 2-3 interviews, but उनमें से मैंने किसी को accept नहीं किया. ओके, सो अब आपने इंटर्नशिप दोनों में की, सो ऐसा आपने क्या किया कि दोनों में ही पीपीओ मिले आप? Yeah, before that I would like to share कि LinkedIn का मेरे पास 2 offers थे actually. For the same position, for the software development position only. So one was on campus that I shared abhi. Second was from the hackathon. लिंक्डइन का एक नेशनल लेवल हैकाथॉन होता है विच इज नोन एज विंटेथॉन. सो उसकी जो विनर टीम होती है उसको वो डायरेक्टली इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्नशिप. सो आई वॉन दैट हैकाथॉन. सो यू कैन से कि हाँ मेरे पास ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी भी थी, बट इट वॉज फ्रॉम द सेम कंपनी एंड सेम पोजिशन. So hackathons के through भी you can get a job or internship, all these things. You just have to be Even very aware Flipkart about Grade is all these things. providing that internship. Right, right. Flipkart Grade, Infosys also Mintra. providing, means JP Morgan providing, Myntra is providing. Right, right. So I have almost participated in all these hackathons. But Okay, yeah, winning part में खाली LinkedIn है. अच्छा, no issue. So it was great now, means you have already got the internship. Right, right. So actually मतलब मेरे पास ऑफर था LinkedIn का, एंड देन आई वॉन दी हैकाथॉन. तो Hackathon. ऐसा हो गया कि यार उन्होंने जिससे हायर किया हुआ था उसे ही वो दोबारा जीत गई. एंड इट वाज रियली फनी कि हाँ 2 ऑफर्स हैं बट सेम कंपनी के सेम पोजीशन के ऑफर्स हैं. सारे फ्रेंड्स गाली दे रहे होंगे, एक हमें दे दे। राइट. हुआ था ऐसा. Okay, बट द गुड थिंग वाज कि पूरी टीम को मिलता है, तो आई वाज नॉट दी ओनली वन जिसे मिला था वो ऑफर. okay. So how was the experience in the LinkedIn internship? क्योंकि आपको 2 मंथ इंटर्नशिप आपने हम्म. LinkedIn में की और 6 मंथ आपने अडोबे में की, स्टिल राइट. आपको लगा कि LinkedIn इज अ बेटर वर्किंग हम्म. एनवायरनमेंट, ठीक है? हम्म. सो ऐसा उन्होंने 2 महीने में क्या किया जो अडोबे से कंपनी आपको कन्विंस नहीं कर पाई? Yeah, so I would say कि लिंक्डइन का जो वर्क कल्चर है ना, दैट इज वेरी फ्रेंडली. मतलब इवन योर मैनेजर्स, योर सीनियर मैनेजर, दे आर वेरी फ्रेंडली टू यू. मतलब कोई भी इशू होगा, इवन यू कैन से कि यार नहीं प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, थोड़ा वर्कलोड कम होना चाहिए, तो दे आर हैप्पी कि हाँ ठीक है सही बात है, वी अंडरस्टैंड कि इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए. या फिर इफ यू आर फेसिंग कि यार ये वाला प्रोजेक्ट मेरे लिए नहीं है, आई कैन नॉट मतलब रिलेट टू इट, और ये ऐसा होता है ना कि कॉलिंग होती है यार, ये वाला प्रोजेक्ट मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इससे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, या दिस इज समथिंग आई कैन रिलेट टू इट. सो दे टुक केयर ऑल दीज थिंग्स. ऐसा नहीं होता बस कि वो ऑर्डर दे देते हैं ये काम करना है एंड देन यू जस्ट हैव टू डू इट. दे प्रॉपरली टेक केयर ऑफ योर इंटरेस्ट एंड द कंपनी इंटरेस्ट, एंड देन मर्ज द टू कि ये बेस्ट है दोनों के लिए. तो दैट इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट देम. एंड ऑल्सो लाइक उनकी काफी पर्क्स एंड बेनिफिट्स है. if I can recall, LinkedIn is one of the best company जो जिसका नाम दिया जाता है वर्क कल्चर इन्वायरमेंट में. सो लाइक दे हैव इन डेज होते हैं हमारे मंथली. 1 या 2 दिन हमारे सिक्योर होते हैं कि इन डेज पर कोई काम नहीं होगा. इस पर सिर्फ इवेंट्स होंगे based on a theme जो yearly define होती है. like this for this year we have a theme of belonging. so that means जितने भी events होंगे वो belonging से related होंगे, कि आपको अपनी family के साथ कैसे टच में रहना चाहिए, या आपको फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करना चाहिए, all these things. so like ये हो गया इंडे का. एंड देन वी हैव अ गुड पॉलिसी ऑन हॉलीडेज, एंड देन मतलब पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है लिंक्डइन के इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जो होती है. तो दैट अच्छा, इज व्हाई ये आई वाज बताइए श्योर अब कि लिंक्डइन कि जाना है. LinkedIn और Adobe में तो हो गया कंपैरिजन. Atlassian claim that they are providing a package of 50 lakh, even though their या base package is 12.5.
सो मतलब एक 50 का फिगर तो आ ही जाता है ना दिमाग में, यार 50 लाख दे रही है राइट कंपनी, ठीक है, और एक है लिंक्डइन। सो मतलब राइट Atlassian is also one of the best company. So राइट मतलब राइट तो कैसे मतलब किया आपने? हाँ, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी। मतलब ऐसा हुआ था कि अगर लिंक्डइन का पीपीओ पहले आ जाता तो मैं एटलासियन के लिए आई वोंट अप्लाई, बट ऐसा था लिंक्डइन पीपीओ थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। सो दैट इज वाई मैंने कहा चलो ठीक है, प्लेसमेंट में तो बैठना ही पड़ेगा, एंड एटलासियन आई एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो फिर आया डिसीजन टाइम कि अच्छा ठीक है, दोनों में से क्या चूज करना है। तो आई हैव टू टेक केयर कि ठीक है, दोनों का पैकेज क्या क्या है, कंपेयर कैसे करना है। एंड देन लिंक्डइन का थोड़ा एडवांटेज था क्योंकि मैंने वहाँ काम किया हुआ था, एंड आई नो द टीम जो मैं ज्वाइन करने वाली थी, एंड आई नो द वर्क इन्वायरमेंट। तो मेरा मेन फोकस ये था कि यार मतलब कंपनी वैसे होनी चाहिए कि प्रेशर फील ना हो मुझे, एंड आई कैन ग्रो पर्सनली, एंड उनकी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो भी करना है मुझे वो भी प्रॉपरली हो। ऐसा ना हो कि बर्डन की तरह मुझे काम करना पड़े। सो दैट वाज द एडवांटेज विद लिंक्डइन कि मुझे पता था कि वहां पे तो ऐसा नहीं होने वाला, उनका वर्क एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। एंड एटलासियन का मुझे कोई आइडिया नहीं था, एंड मेरे कोई फ्रेंड्स या कोई गार्डियंस भी नहीं थे जो एटलासियन में काम करते हो, बट आई अप्रोच फ्यू पीपल ओवर लिंक्डइन कि एटलासियन का कल्चर कैसा है, एंड ऑल गेव अ पॉजिटिव फीडबैक कि काफी अच्छा है, एंड दे हैव अ पॉलिसी ऑफ टीम एनीवेयर। सो उनका ऐसा है कि शायद कोविड के बाद भी वो लोग ऐसा फोर्स नहीं करेंगे कि आपको ऑफिस आना है। सो दैट इज वाई माई मॉम यूज टू से कि क्यों जा रही है लिंक्डइन पे, यही चूज करे ना, आराम से घर में बैठ के काम होगा। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मतलब सब कुछ ये नहीं होता। सो इट वॉज अ टफ डिसीजन। बट हाँ, पैकेज वाइज एज यू मेंशन कि 50 lakhs का सुन के थोड़ा लगता है कि ये तो काफी बड़ी चीज है। बट जब हम उसे कंपेयर करते हैं ना, तो मेन थिंग इज योर बेस सैलरी, एंड लिंक्डइन का बेस ज्यादा था for as compared to Atlassian, and in terms of stock जो मतलब वो 50 का जो फिगर है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्टॉक्स का है। सो स्टॉक्स का मेरा ऐसा था ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे चलता है, बट मेन जो है वो बेस है, एंड आई विल गो विद LinkedIn only. So that was my criteria to decide based on work culture and from base salary. Okay. Right. Now So tell me, what is the difference between internship interview and the interview for the full time role? या सो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सिस्टम डिजाइन का। मतलब अगर इफ यू आर सिटिंग फॉर इंटर्नशिप प्लेसमेंट, तो उसमें सिस्टम डिजाइन आपसे नहीं पूछेंगे। ऐसा होगा कि पूछा अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन कि सर्वर साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है, बस बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। एंड इन केस ऑफ योर फुल टाइम इंटरव्यूज, उसमें आपको कंप्लीट सिचुएशन दी जाएगी कि अच्छा ठीक है, यू हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ सिस्टम। सो बताओ अब इसका फ्लो कैसा होगा, एंड हाउ विल यू मैनेज द डेटाबेस, एंड कैसा सारा स्ट्रक्चर बनेगा। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो काफी मतलब काफी अच्छा होता है, जिससे इंटरव्यू देख सकते हैं कि आपकी डेवलपमेंट स्किल्स क्या है, आपकी पूरे सिस्टम को देखने का तरीका क्या है। तो ये सिस्टम डिजाइन आई वुड से कि इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन योर इंटर्नशिप एंड योर फुल टाइम प्लेसमेंट इंटरव्यूज। बाकी डीएसए तो दोनों में होगा, एचआर राउंड भी दोनों में होगा, रेज्यूमे के ऊपर क्वेश्चंस भी दोनों में होंगे। मेन डिफरेंस इज हाउ योर इंटरव्यूअर विल जज यू कि मेन फोकस क्या होगा। लाइक इन द इंटर्नशिप दे विल फोकस कि बेसिक डीएसए आता है या नहीं आता, डीएसए का अंडरस्टैंडिंग कैसा है, उसे कम्प्लीटली हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। उसमें अगर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो हम उस चेंज को मॉडिफाई करके अपना सॉल्यूशन चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो दैट वाज द कंसर्न इन इंटर्नशिप, एंड इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम दे विल फोकस ऑन लाइक एक्चुअल प्रॉब्लम्स कि क्या हम हैंडल कर सकते हैं उन्हें या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो आपने बात की थी कि आपने जो भी प्रिपरेशन की है वो अपने आप की है without buying any courses, and there are so राइट many resources for free, and students spend lot of time just to find a resource and very few time to read them. Fine. राइट So क्या आप उन मतलब रिसोर्सेज को मेंशन कर सकते हैं? वी विल आल्सो ट्राई टू प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, हम्म बट अभी आप एक बार राइट बता दो कि कौन कौन से मतलब मिनिमम इतने रिसोर्स ये सारे तो करने ही हैं। हम्म So for development, I did a course from Udemy, web development bootcamp. That is the name of the course. So I think it's a 48 hours course or something. वो basic से start होगा, and they will help you to build a complete website.
एक अच्छी वेबसाइट। सो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का बेसिक, नोड जेएस का बेसिक, ऑल दीज थिंग्स। एंड इफ यू वांट टू गो हायर तो काफी अवेलेबल कोर्सेज हैं, बट इन माय केस व्हाट आई डिड वाज आई took that course and then I started participating in hackathons। तो जो उनकी टीम्स होती थी उसके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई यूज टू डिजाइन ऑल दी फ्लो। एंड देन बाकी जो चीजें मुझे चाहिए कि ठीक है ये फ्लो है, गूगल सर्च किया ये फ्लो कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स हैं, एंड देन आई यूज टू लर्न फ्रॉम दैट। गिटहब इज अ वेरी गुड सोर्स टू लर्न, you can definitely go for it if you are learning for development। So that was my thing। In the development side I did only one course, that web development वाला course। मशीन लर्निंग के 2-3 कोर्स किए थे, बट दैट इज अ वेरी बेसिक लेवल। एक था लाइक एंड्रयू एनजी का कोर्स है, एंड लाइक दैट इज द फंडामेंटल कोर्स जो भी स्टार्ट करता है मशीन लर्निंग के लिए, वो तो पहले वो कर। आप ले सकते हो। राइट राइट, वो आप ले सकते हो। बाकी फॉर दी कोडिंग पार्ट कोई मैंने कोर्स नहीं लिया, बस वो जो मस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस थे वो किया था गीक फॉर गीक्स का। बाकी आई जस्ट प्रैक्टिस्ड फ्रॉम हैकर रैंक एंड गीक फॉर गीक्स एंड लीड कोड। और एज आई सेड कि मैंने स्टार्टिंग से ही कोड शेफ किया था, तो उसके एडिटोरियल्स आई यूज टू रीड कि ठीक है जब कॉन्टेस्ट ओवर हो गया एडिटोरियल आया तो फिर उसे गो थ्रू किया। आपने ज्यादातर कोडिंग अपने मोबाइल पे की है, ठीक है, कीबोर्ड राइट लगा के। दैट इज रियली रियली राइट हार्ड जॉब। नोटिफिकेशन आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, राइट ठीक है। और लैपटॉप मतलब मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन, सो उसमें राइट। एरर फाइंड आउट करना इज ऑल्सो अ बिट ऑफ द टास्क, राइट। हम्म। सो और इतना डेडिकेशन कि मोबाइल पे कोडिंग करनी है, वो सबसे मेन चीज है। सो वो सब कैसे किया? Yeah, so I would say कि I was not very active on social media in the first and second year of my engineering। All my friends मतलब हम कॉलेज में ही थे तो सारी बातें हो जाती थी हमारी वहां पे। एंड घर पे आके वी हैड टाइम कि ठीक है अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आई यूज टू कम बैक एट होम एट अराउंड 7 और 8। तो उसके बाद फिर क्या ही बात करेंगे, ऑलरेडी पूरा दिन हम साथ ही थे तो बाकी तो क्या ही बचा। या आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो फोन पर इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। बट हाँ देयर वाज सम इशू कि फोन पर कोडिंग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज कोडिंग साइट्स आर नॉट वेरी क्या बोलते हैं उसे, उनके मतलब यूआई फ्रेंडली यूजर नहीं होते फ्रेंडली, मोबाइल के। यूआई फ्रेंडली नहीं होती मोबाइल के लिए। राइट, मतलब कंपाइलर उन पे ठीक से वर्क नहीं करता। इफ यू वांट टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दिस थिंग तो वो सब सही चलेगा, बट इफ यू आर एक्चुअली डूइंग द कोडिंग एंड रनिंग एंड टेस्टिंग ऑल दिस थिंग उसमें थोड़े इश्यूज आएंगे। बट ठीक है वो हो जाता था। ऐसा था एक एक टारगेट सेट किया होता था, दिन के 10 क्वेश्चन करने हैं तो वो करने ही होते थे फिर। तो वो हो गाइस जाता था। ये है सही मोटिवेशन, मतलब मोबाइल पे कोडिंग करना है कि हाँ ठीक है, वी कैन अफोर्ड अ लैपटॉप, सो जो है उसमें करना है। एक 8-10 हजार का एक सिंपल सा नहीं। लैपटॉप मोबाइल लिया और उस पे मतलब सारा काम कंप्लीट किया, क्योंकि ये होता है मोबाइल का यूज। मतलब आप आईफोन ले रहे हो या फिर S20 S21 ले रहे हो एंड यू आर जस्ट क्लिकिंग द पिक्स, तो ये था स्मार्ट यूज, मतलब सीरियसली। एंड आई वुड से हेल्थी इन्वायरमेंट भी था, हेल्थी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो हमारा ऐसा होता था कि फ्रेंड्स के बीच में हम ना रेस टाइप का करते थे यार, उसने 2 क्वेश्चन कर लिए, मेरा अभी तक एक ही हुआ है यार, मुझे जल्दी जल्दी करना है। तो ऐसे भी होता था। दैट वाज अ वेरी हेल्थी इन्वायरमेंट। एंड फिर ऐसा होता था यार आज मेरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए, ये लास्ट क्वेश्चन में स्टक हो गई हूँ, पता नहीं इसमें क्या इशू आ रहा है। तो दैट फ्रेंड वो यूज टू कि चल ठीक है कॉल पे आ जाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे करके होगा। दैट वाज अ वेरी हेल्थी इन्वायरमेंट आई वुड से। मैं बोलूंगी कि हाँ एक ग्रुप बनाना या फिर एटलीस्ट हैव वन फ्रेंड जिसके साथ आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, तो काफी अच्छा जर्नी रहेगा। फिर वो ऐसा प्रेशर फील नहीं होगा, फिर वो दैट विल बी अ फन जर्नी। तो गाइस नॉर्मली मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हाँ क्या क्वेश्चन पूछे, क्या नहीं पूछे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी। बट एक तो 3 कंपनी थी और मोर और लेस एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता था, तो इट्स मोर ऑफ द चिट चैट। एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस चिट चैट, मीन्स इट वाज फन फॉर मी एटलीस्ट। आई वुड जस्ट से प्रैक्टिस एंड थिंग्स विल कम टू यू। मतलब कोई कोई शॉर्टकट नहीं है कि हाँ ये चीजें कर लेना। आई आई हैव जस्ट शेयर्ड माय एक्सपीरियंस, बट यूट्यूब पर आपको काफी सारे एक्सपीरियंस मिल जाएंगे एंड सब अपना अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। बट वन थिंग दैट इज कॉमन इन ऑल दोज इंटरव्यूज एंड ऑल दोज टिप्स एंड ट्रिक्स इज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अगर if you are doing practice and if you are ready to accept the rejections and learn from them, then अभी नहीं तो कल आपको प्लेसमेंट मिलने वाली है. तो गाइस सिंपल है, आपको कोडिंग करनी है एंड कोई बहाना नहीं चलेगा. मतलब कई लोग कहते हैं कि हाँ मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, आई कैन बाय दिस कोर्स दैट कोर्स. एंड ऋषिका ने कोई कोर्स नहीं खरीदा. ऋषिका के पास कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, उसने कोडिंग मोबाइल पे की. एंड उसने मतलब आप लोगों से बहुत ज्यादा की. मतलब एक दिन में 10 to 20 कोर्स करना, वो भी मस्ट डू कोडिंग टाइप के क्वेश्चन. सो दैट्स अ रियली बिग अचीवमेंट. मतलब सिलेक्शन होता है, बहुतों का होता है, लेकिन मोबाइल पे कोडिंग करके सिलेक्शन होना, दैट्स अ अचीवमेंट. सो थैंक्स ऋषिका. थैंक यू सो मच.